Good morning, students. Yesterday we will learn example 1 and 2 and exercise question. Okay. Now I am going to start example third. Okay. The example third is an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? It's a very simple question. एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, कोई पर्सन खड़ा है जिसकी आईज यहाँ होगी, करेक्ट, एंड द चिमनी इज ओवर हियर. चिमनी कहाँ है? यहाँ पर है. ऑब्जर्वर्स के फुट से चिमनी के फुट का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? What is the distance between the observer and the chimney? Tell me, student, what is the distance between? Correct. 28.5 meter. Okay. And what is the height of the observer? Observer की height क्या है? What is the height of the observer? 1.5 meter. Okay. If this is 1.5 meter, then what is the length of this part? Ma'am, same 1.5 meter. 1.5 feet. If this the length between these two foods is 28.5 meter, then what is the length of this part? Again 25.5. 28.5. Okay. ऑब्जर्वर के आईज से, यानी ऑब्जर्वर का आईज यहाँ नहीं होगा, ऑब्जर्वर के आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन above the horizontal line. This is your horizontal line, and above the horizontal line, this is your angle of elevation. What is the angle of elevation given? 45 degree. It means this is 45 degree. Okay. Then what is the height of the chimney? Now you have to find the height of the chimney. तो आपको बेटा क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द चिमनी फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को फाइंड करना है. लेट द हाइट ऑफ द चिमनी इज AB एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज DC. ओके. फिगर अच्छे से क्लियर है बेटा? आपको फिगर में कोई प्रॉब्लम है? Yes, ma'am. Okay. Now let the height of the chimney is AB and the height of the observer is what? CD. है ना? ऑब्जर्वर की हाइट CD हो गई, चिमनी की हाइट AB हो गई. The distance between the observer and chimney is BC. BC is equal to what? 28.5 meter. Now we have AD is equal to, we can write AD is equal to, we can what AE plus EB लिख सकते हैं. AE plus EB लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बेटा? And Yes, ma'am. DC is equal to 28.5 meter and from figure BC is equal to ED is equal to 28.5
meter. BC is equal to 28.5. BC is equal to AD. That's why AD is also 28.5 meter. Now in triangle, in which triangle we have take? We have take in triangle AED. AED. बेटा we have to find the height of this partner AE. AE हमें find करना है, that is the height. यह क्या है? Height. Base is given to you and the angle is given to you. Which trigonometric ratio we have to take? जो रेशियो होता है हाइट और बेस का, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हाइट और बेस का रेशियो होता है? Which trigonometric ratio? Tell me. Ma'am, 10. So we take 10. 1045 degree. 1045 degree is equal to AE upon ED. लिख सकते हैं बेटा या नहीं लिख सकते हैं? AE upon ED होगा 1045 is equal to AE upon ED. is equal to H upon ED की वैल्यू 28.5 and what is the value of 1045? 1045 की वैल्यू क्या होती है? So H is equal to 28.5 meter. It is the value of AE. Now height of the chimney is AB is equal to AE plus ED. AB is equal to what is the value of AE? It's 28.5 meter plus what is the value of EB? EB की वैल्यू क्या है? EB is equal to CD और CD क्या था? 1.5 meter था. That's why EB is also 1.5 meter. Now add height of chimney क्या आया बेटा? What is the height of chimney? Ma'am, 30 meter. 30 meter. क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? Yes, ma'am. सोल्यूशन कोई प्रॉब्लम है बेटा सोल्यूशन में? No, ma'am. No, ma'am. Yes. Now can I start example 4? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एग्जाम्पल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको जरूर कीजिएगा. एग्जाम्पल 4. फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground. From a point P on the ground. This is the point P on the ground. Angle of elevation of the top of a 10 meter tall building. Tall building, 10 meter tall building यहाँ कहीं है. This is the 10 meter tall building. ठीक है, this is 10 meter tall building. इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? It is 10 meter. Okay, 10 meter tall building. Angle of elevation of the 10 meter tall building is 30 degree. Point P से angle of elevation जो है वो कितना बन रहा है? कितना डिग्री है बेटा? ये कितना डिग्री बता रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री. ओके, देन अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. फ्लैग इज होस्टेड, टॉप ऑफ द बिल्डिंग यहाँ है, फ्लैग आपका इसके ऊपर जाएगा. दिस इज योर
फाइंड करनी है। द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू या नॉट क्लियर? क्वेश्चन में क्या है कि एक पॉइंट P है, पॉइंट P, ओके, जो पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनता है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग से 30 डिग्री बन रहा है, दिस 30 डिग्री, ओके। देन बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग है और फ्लैग के से पॉइंट P से फ्लैग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है? अगेन 45 डिग्री बन रहा है, ओके। देन यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द पॉइंट P. Figure is clear to you? Yes, ma'am. ओके, स्टेटमेंट बेटा मैं अब नहीं लिखूंगी, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि फिगर में आपने किसको क्या चीज लिया है, क्या लेट किया है, क्या गिवन है, वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बट अब मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि उसमें बहुत ही टाइम लग रहा है। आई थिंक कि आप लोग लिख सकते हो, यू आर एबल टू राइट द स्टेटमेंट, यस या नो? Yes, ma'am. इन ट्रायंगल Yes, ma'am. ABP, angle ABP, in triangle ABP, ठीक है। किस ट्रायंगल में हमने लिया? AB और P में, ये वाले ट्रायंगल में लिया, ओके। ABP में AB is equal to 10 मीटर, BP is equal to x. We have to find the value of BP, है ना, हमें BP की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है, the distance between the building and the point P, that is x. Now we have to find the base and the angle is 30 degree, ठीक है। कौन सा ऐसा trigonometric ratio होता है जिसमें height और base given होता है? Which trigonometric ratio is this? Cos theta. No, cos थीटा में तो बेस और हाइपोटेन्यूज होता है बेटा। Tan 30 degree is equal to AB upon PB. Is it clear? cos में तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, हमें हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं, हमें हाइपोटेन्यूज नहीं फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड बेस और हाइट इज गिवन टू यू। अगर हमें बेस फाइंड करना है तो हम 10-30 डिग्री अप्लाई करेंगे और हाइट हमें गिवन है, तो हाइट और बेस का हमें रेशियो फाइंड करना है ना। नाउ इट्स क्लियर? व्हाट इज 10-30 डिग्री की वैल्यू? इट्स 1/√3. AB is given to you 10 meter and PP you have to find x. Then x is equal to what? 10√3 meter. So the distance between point P and the building is 10√3 meter. एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। किसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने? यस, किसकी वैल्यू बेटा फाइंड कर ली हमने? वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x इज इक्वल टू 10√3 मीटर. now we have to find the value of this flag, the height of AC. we have to find out the height of AC. now take a triangle CBP. in triangle CBP, CB को हम क्या लिख सकते हैं? CB को क्या लिख सकते हैं? CA plus AB लिख सकते हैं? यस या नो? CB
C is equal to CA plus AB. Okay. Now it's 10 plus H. 10 plus H. So the value of CB is 10 plus H. Now again apply 10 45 डिग्री. फिर से हम 10 45 डिग्री अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें हाइट और बेस के बीच का रेशियो लिखना है. 10 45 डिग्री इज इक्वल टू CB अपॉन BP. For 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, CB की वैल्यू 10 प्लस H और BP की वैल्यू 10√3. बेटा अभी हमने फाइंड किया. 10√3 is equal to 10 plus H. H is equal to 10√3 minus 10. H is equal to 10 कॉमन ले लेंगे इन ब्रैकेट √3 minus 1. H is equal to what is the value of √3? 1.732 minus 1. H is equal to 10 in bracket point. H is equal to 7.32 meter. Is it clear? So the height of the flag is what? Height of the flag बेटा क्या आया? 7.32 meter. This is your answer. फिर से एक बार देख लीजिए. एक पॉइंट P था. P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 10 मीटर टॉल बिल्डिंग से 30 डिग्री बन रहा है. ओके. बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग लगा हुआ है और फ्लैग के टॉप से उसी पॉइंट P पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है. ओके. देन you have to find the height of the flag and the distance between the tall building and the point P. Point P और tall building के बीच का distance भी find करना है. तो हमने distance को ले लिया h और height को ले लिया h. मतलब flag के height को ले लिया h. Now in triangle ABP में ABP AB is given to you 10 meter. BP को हमने x select किया. Now apply 10-30 degree. 10-30 degree क्यों लिया? Because 10-30 होता है height और base का ratio. AB upon PB. AB is 10 meter and PB is x. 10-30 की वैल्यू 1/√3. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10√3 मीटर. यानी कि डिस्टेंस हमें पता चल गया इट्स 10√3 मीटर. Now so the distance between the point P and the building is 10√3 meter. Now in triangle CBP. अब हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द फ्लैग फाइंड करना है. तो हम CBP लेंगे. CB को we can write CA plus AB. AB की वैल्यू 10 है और CA की वैल्यू h है. तो CB हो जाएगा 10 plus h. Now 10:45 लेंगे. 10:45 डिग्री is equal to CB upon BP. That is BP. BP की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली थी 10√3. वैल्यूज पुट किए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h. h की वैल्यू क्या आ गई? 7.32 मीटर. दिस इज द हाइट ऑफ द फ्लैग. इट्स क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ आज के लिए लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 5. उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे. द एग्जांपल 5 इज the shadow of a tower is standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. एक टावर है. दिस इज योर टावर. ठीक है. सन का एल्टीट्यूड जब टावर पे पड़ रहा है 60 डिग्री, अरे सॉरी 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, तो ये 40 मीटर का शेडो बनाता है. मान लीजिए यहाँ तक 40 मीटर का शेडो बना. फिर जब सन का शेडो 60 डिग्री बन रहा है
When it is 60 degree, what is the height of the tower? तो height of the tower आप बताइए। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन। The shadow of a tower standing on a level is drawn to be 40 meter longer. 40 मीटर longer shadow बन रहा है टावर का। When the sun altitude is 30 degree, जब सन का altitude यानी सन का एंगल उस shadow से 30 डिग्री बन रहा है। When it is 60 degree, then it is 60 degree, फिर वो क्या हो जा रहा है? 60 डिग्री हो जा रहा है। Find the height of the tower, तो आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। The question is clear to you? Yes, ma'am. Yes, क्वेश्चन में ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? Yes, ma'am. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। No. वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक टावर है AB, टावर इज AB, ठीक है। इसकी हाइट हमें नहीं पता है। जब सन का एल्टीट्यूड मतलब कि सन जब 30 डिग्री पर हो रहा है तो इसका शैडो 40 मीटर बन रहा है। टावर का शैडो 40 मीटर बन रहा है। फिर जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री हो रहा है, फिर कुछ देर के बाद सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री हो जा रहा है, तब उसका शैडो भी बताइए और उसकी हाइट भी बतानी है। द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू, नो डाउट। नाउ सॉल्व करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD ठीक है। H और X में हमें रिलेशन निकालना है। H क्या है? H इज द हाइट एंड X इज द बेस। हाइट और बेस का रेशियो किसमें होता है बेटा? हाइट और बेस का रेशियो किसमें होता है? इट इज इन 10। And 10. tan 60 डिग्री हमने लिया। tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन BD होगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 is equal to H upon X. It means X √3 is equal to H. ठीक है, X √3 is equal to H आ गया। This is your equation 1 लेट कर लेंगे। Now अब किस ट्रायंगल में लेंगे? A, B and C में। In triangle ABC, BC को हम क्या ले सकते हैं? What we can write BC? BC is equal to BD plus DC लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? Is it correct? BC is equal to BD plus DC लिख सकते हैं। BC is equal to BD की वैल्यू X and DC की वैल्यू 40 मीटर। Now again tan 30 degree is equal to tan 30 की वैल्यू क्या होती है? हाइट अपॉन बेस। हाइट यहाँ पे क्या? हाइट इज सेम AB एंड बेस इज BC। AB upon BC. The value of AB की वैल्यू क्या है? H हमने लेट की थी और BC क्या है? X plus 40। X plus 40 है। ओके, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 upon √3. You have to find the value of H. H की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। X इक्वेशन 1 में आते हैं। X this X is equal to क्या हो जाएगा? H upon √3 होगा। या आप H की जगह पे H की जगह पर आप X की वैल्यू पुट कर दीजिए। It's √3 X √3 X की वैल्यू क्या थी? H की वैल्यू X √3 थी। क्रॉस मल्टीप्लाई X plus 40 is equal to √3 into √3 becomes 3. X plus 40 is equal to X into √3. 1 minute.
20√3 meter. So the height of the building is what? √3 meter. This is your answer. ठीक है, और x की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली. जब 60 डिग्री पर एल्टीट्यूड था सन का, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 20 मीटर, यानी कि शैडो क्या हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा. The solution is clear to you, students? Yes, ma'am. Any problem? No. No problem, ma'am. Exercise 9.1. The question number 6 is: a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. This is a 30 meter tall building, and the height of the boy is 1.5 meter. Okay. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree. Angle of elevation, eyes यहाँ है बेटा, उसके eyes से पहले 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. Then it's increase, यानी कि ये जो बॉय है ये आगे की तरफ बढ़ता है यहाँ पर, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 60 डिग्री का. Then he walks towards the building. जब वो बिल्डिंग के तरफ बढ़ता है तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. Find the distance he walked towards the building. तो डिस्टेंस फाइंड कीजिए कि उसने कितना वॉक किया बिल्डिंग के तरफ. ओके, okay. Question is clear to you? You are not clear? Yes, ma'am, clear. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सेम एज एग्जांपल. विच एग्जांपल? एग्जांपल थर्ड. द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर, है ना. दिस पार्ट इज, यानी कि जो बॉय का हाइट है दैट इज 1.5 मीटर. तो EB की भी वैल्यू क्या होगी? 1.5 मीटर. होगी या नहीं होगी? जस्ट टेल मी दिस. इज इट क्लियर? होगी ना बेटा. तो आपको फाइंड क्या करना है? CF फाइंड करना है कि बॉय जो है वो बिल्डिंग की तरफ कितना मूव किया है, कितना चला. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CF. CF की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. ओके, देन फर्स्टली वी हैव टेक which triangle? We have take AEG. In triangle AEG, AEG में हमने लिया तो हमें बेस फाइंड करना है. बेस हाइट इज गिवन टू यू. हाइट कितनी होगी? AE की हाइट कितनी होगी? AE इज इक्वल टू, वी कैन राइट AB माइनस EB. AE को हम क्या लिख सकते हैं? AB माइनस EB लिख सकते हैं. AB is equal to what? 30 meter and EB is equal to what? 1.5 meter. So AE is equal to क्या आ जाएगा बेटा? AE is equal to क्या आएगा? 30 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट कीजिए. 28.5 मीटर आएगा. आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लास 9 समझ में आ रहा है? सॉरी, क्लास 10 समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. AE की जो
AB जो है टोटल AB 30 मीटर है और EB जो है वो 1.5 मीटर है बिकॉज इट इज इक्वल टू DC। तो अगर ये 1.5 है तो हमें अगर AE फाइंड करना होगा तो AB में से EB माइनस कर देंगे तो ही तो AE आएगा। तो 30 में से 1.5 माइनस कीजिए तो 28.5 आ गया। ओके, देन अगेन हाइट हमें पता है, बेस वी हैव टू फाइंड व्हिच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी हैव टू अप्लाई। tan 60 डिग्री वी हैव टू अप्लाई, इट्स बिकम्स AE अपॉन EG। EG is equal to tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, AE की वैल्यू हमने 28.5 फाइंड किया एंड EG is equal to आ गया 28.5 अपॉन √3 मीटर। इसकी वैल्यू 28.5 अपॉन √3 मीटर, यानी FB हमें पता चल गया 28.5 √3 मीटर बिकॉज EG इज इक्वल टू BF है तो 28.5 अपॉन √3 मीटर हमें पता होगा। नाउ इन दिस ट्रायंगल AED में लेंगे, इन ट्रायंगल AED tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AE अपॉन E और D, ED किसके इक्वल होगा BC के इक्वल होगा। BC इज इक्वल टू BF प्लस FC होगा। BF की वैल्यू 28.5 अपॉन √3 है और FC हमने x लेट किया था, इट मींस 28.5 अपॉन √3 प्लस x। इज इट क्लियर या नॉट क्लियर? AE अपॉन BC और BC की वैल्यू क्या होगी, BC इज इक्वल टू होगा आपका BF प्लस FC और BF की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 28.5 अपॉन √3 और FC क्या है, FC हमने x लेट किया, इसी की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया है tan 30 डिग्री में। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन 28.5 प्लस √3x अपॉन √3। √3 से √3 बेटा कैंसिल हो जाएगा आपका, √3x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 प्लस √3x इज इक्वल टू 28.5